Assalamualaikum, good morning, and a very good welcome to all the viewers who are watching us live at the moment. We have with us an amazing consultant who is going to tell us about the digital transformation and the automation processes, Mr. Suhail Server, and we have with us General Ubaid bin Zakria from the Lahore Garrison University. I welcome you on board, both of you. So, सबसे पहले सुहेल साहब, the topic that we are going to discuss today, business process automation. ये होता क्या है? What is this whole digital transformation, and how have you perceived that it has changed over the period of time, especially during the corona pandemic? Great. So first of all, I would like to thank CGI for inviting me to this platform to share my learning, what I have learned so far over the period of more than a decade in different regions in Middle East and Pakistan, and working with the US-based client as well. So सवाल आपका कि ये होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस, हम यहाँ से बात शुरू करेंगे. देन व्हाट आर व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे इन दिस सिनेरियो. और जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको किस पर्सपेक्टिव में देखती हैं और अपने प्रोसेसेस को क्यों किस तरह से इम्प्रूव करती हैं, ये हम बात करेंगे. And why it is an important consideration for even startups, because startup school में of course ये session कर रहे हैं, हमारी audience भी startup audience है. So उनके लिए क्या relevance है इस topic की, इस subject की, अपने business को जब वो design कर रहे हैं अपना business model, इसकी हम बात करेंगे. And of course आपका सवाल कि over the period of time how things has evolved so far, और डिजिटल के कंपोनेंट ने किस तरह से इम्पैक्ट किया है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने किस तरह से इस सब्जेक्ट को, इस एरिया को, इस फंक्शन को इम्पैक्ट किया है. सो आई थिंक आई एम होपिंग फॉर अ वंडरफुल कन्वर्सेशन फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल. उनके जो सवालात हैं वो भी फ़ौरन पोस्ट कर सकते हैं. एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर टॉपिक, आई वुड लाइक कि ऑडियंस में से जो है वो बताना चाहें कि वो किस इंडस्ट्री से हैं, लाइक वो किस साइड पे फोकस कर रहे हैं. आइदर दे आर फ्रॉम ई कॉमर्स, फ्रॉम रिटेल साइड, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइड, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं. इवन अगर हमारी ऑडियंस में इंटरप्राइज साइड के लोग हैं, बैंकिंग से हैं, टेलकोस से हैं, या किसी भी इंडस्ट्री से हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन सेक्शन so we can do even more relevant conversation के उनकी इंडस्ट्री के लिए जो है वो बिजनेस प्रोसेसेस, डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन का क्या मतलब हो सकता है, और डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और ऑटोमेशन कैसे काम करती है. So, do you want me to add anything else in the agenda of today's conversation? Absolutely. One more thing, because you've had experience of working in Middle East as well. So, वहाँ के ecosystem को देखते हुए, what suggestions do you specifically have for the startups based in Pakistan as well? This is one thing that I would like you to add as well. Okay, great. So definitely जब आप एक और territory की बात करते हैं, जैसे Middle East की बात करते हैं, तो it will be a good benchmark for our local startups and organizations के मिडल ईस्ट में किस तरह से काम होता है, और हम उस बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हुए किस तरह से हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड टू ऐड इन टुडेज एजेंडा. सो वी हैव अभी हमारे पास 2 कमेंट्स आए हैं जिसमें हम digitized education system की बात हो रही है. So education sector, saying Brainix digitized education system, and Zara Khan is saying agriculture, AI for agriculture and AI automation devices. ठीक है. So we would try to incorporate these both segments and anything else what comes our side. So education, of course, this program is been powered by Lahore Garrison University. Ubaid साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. So education definitely is a relevant industry to speak about कि business process जो है वो कैसे impact करते हैं. अच्छा, सबसे पहले sequential way में चलना चाहूँगा कि business process होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है.
कोई भी मतलब यूनिवर्सल लॉ है जिसको हम कहते हैं सिस्टम थ्योरी, कि एक निज़ाम है, कायनात का निज़ाम है, इसी तरह जो है वो बिजनेसेस का एक निज़ाम है, सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि इनपुट होती है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट निकलती है। ये 3 स्टेप्स हैं किसी भी निज़ाम के, ठीक है। तो इसी तरह बिजनेसेस हैं आपके, उसमें जो है वो आपकी इनपुट्स काउंट होती हैं, फिर उस इनपुट्स को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, दैट डिटरमिन्स के रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। आइदर वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, वो दूसरे कंपेटिटर्स से कंपेटिटिव होगा, वो लॉस में जाएगा, उसकी किस्मत का जो आप कह लें कि फैसला इन 2 फैक्टर्स के ऊपर किया जाता है, इनपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट्स जितनी क्वालिटेटिव होंगी, जितनी अच्छी इनपुट्स होंगी, ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे अगर उसकी प्रोसेसिंग अच्छी की जाए। और अब हम जो है वो प्रोसेसेस की बात करने जा रहे हैं। तो हम जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के किस सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, और व्हाट वी कैन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ टुडेज सेशन, कि व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस। सो अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल, इसको मैं कहूँगा जो हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस सेशन में, डिज़ाइन थिंकिंग में, BMC जो आपने डिस्कस किया, कि हमारा जो है वो उसमें क्या है कि की पार्टनर्स आपने लेने हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन आपने एस्टेब्लिश करनी है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज के स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट करने, देयर आर सेवरल लाइक बिजनेस फंक्शंस। अगर उसको एक प्रोसेस के थ्रू लेके चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाएगा, तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू कंप्लाई विद दोज स्टेक होल्डर्स, विद दोज प्रोसेसेस। सारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर जो हैं वो एक पेज पे होंगे और चीज़ें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर चलती जाएंगी। अब एजुकेशन की अगर बात करें तो एक एडमिशन्स के प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स कैसे किए जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोग्राम, सो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के अपने प्रोसेसेस हैं कि R&D अपनी प्रपोजल देती है और उसके बाद उस प्रपोजल को कंसीडर किया जाता है, फिर उसकी अप्रूवल होती है बेस्ड ऑन द कंटेंट प्रपोज्ड एंड नीड बेस्ड एनालिसिस। इसी तरह जो है एडमिशन्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन इंडक्शन का प्रोसेस है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैटर्स हैं। तो हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस, एक लाहे अमल है, उसके बगैर जो है वो चीज़ें नहीं चल सकती। तो पहले क्या होता है, उस प्रोसेस को कम्युनिकेट किया जाता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो प्रोसेस को बिल्ड किया जाता है, उसके बाद उस प्रोसेस को कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कि दिस इज द SOP जो हमें फॉलो करना है। जैसे कोविड में भी क्या हुआ कि उस कोविड को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने, WHO ने और डिफरेंट जो बॉडीज हैं उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद प्रपोज किया कि दीज आर द SOP नीड टू बी कंप्लाइड। तो वो भी अगेन एक प्रोसेस था। इसी तरह एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, कि हमने जो है वो मोर्टेलिटी को कम करना है, उसको स्प्रेड होने से रोकना है। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें जो है वो ज़्यादा मतलब एडमिशन्स भी सिक्योर हैं और उसमें इंफॉर्मेशन भी पूरी कलेक्ट करनी है, उसमें जो है वो फाइनेंशियल भी आपका कंपोनेंट कवर हो रहा हो। सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स आप ले रहे होते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल बिजनेस प्रोसेसेस। अब बिजनेस प्रोसेस को अगर इट्स द वे, इजीली डिफाइन करें, इज द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दिस इज पैटर्न ऑफ एक्टिविटी टू अचीव सर्टन गोल, ठीक है। और सर्टन गोल, अब गोल्स में जो है वो लिस्ट ऑफ गोल्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के भी और हर बिजनेस फंक्शन के भी। हर बिजनेस फंक्शन के अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम पेमेंट प्रोसेसिंग की बात करें तो उनका KPI क्या होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, कि उन्होंने ऑन टाइम जो और एक्यूरेसी के साथ अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस करना है। सो दिस इज द बिजनेस गोल, दिस इज द KPI। अब इस KPI को मीट करने के लिए हमें बिजनेस प्रोसेस इस तरह का डिजाइन करना होगा कि जिसमें जो है वो फ्रॉड ना हो सके, आपकी ऑन टाइम जो है वो इनपुट हो सके डेटा की, उसमें एक्यूरेसी हो। तो वी डिजाइन आवर सिस्टम इन दैट वे कि अब वन विंडो ऑपरेशंस की, पहले होता था कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज,
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तब होती थी कि जब मैनुअल वर्क हो रहा होता था, कि एक विंडो से अगर आप रिसीव कर रहे हैं अपना चलान फॉर्म, तो दूसरी विंडो से जो है वो पेमेंट जा रही होगी, तब होता था जी मैनुअल वर्किंग थी, देन इट वाज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चूंकि कॉस्ट कॉस्ट उसमें दो ह्यूमन रिसोर्स की लग रही है, और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी क्या है कि यू हैव टू गो फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, सो दो स्टेप्स में काम हो रहा है और उसमें टाइम भी लग रहा है। सो उसको कर्टेल कैसे किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किस तरह से कर्टेल किया गया कि सिस्टम हमने इन प्लेस कर दिया, डिजिटल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आ गया, जिसके अंदर जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन की इनपुट हो रही है और वहीं से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है अपनी पेमेंट रिसीट की। सो व्हाट हैपेंड कि आपके बिजनेस प्रोसेस को कम्प्लीमेंट किया एक डिजिटल इंटरफेस ने। पहले ह्यूमन कर रहे थे, अब प्लस उसमें क्या आ गया, मशीन भी आ गई, इन्वॉल्व हो गई। तो आपका बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया, ह्यूमन प्लस मशीन का, जिसने इम्प्रूव किया आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगेन हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव emerged so far in the business processes. So अभी ऑनलाइन पेमेंट्स हमारे पास मीडियम मौजूद हैं। दे कैन इनरोल राइट लाइक आप अपने ऑनलाइन पोर्टल से ही अपना एडमिशन प्रोसेस करें, और ऑनलाइन ही जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स मल्टीपल पेमेंट सिस्टम्स एक्सेप्ट करती हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पेपॉल से आप पे कर सकते हैं, इवन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो सोहेल भाई, जी एक तो डिजिटल पेमेंट्स इज वन एनेबलर जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को हेल्प करता है। जी तो इसके अलावा मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा सा री एम्फेसाइज कर दें, एक स्टार्टअप है वो भी ग्रो कर रहा है, अर्ली डेज जी में है, और वो जी पेमेंट्स, चाहे ई कॉमर्स स्टोर है उसने भी पेमेंट्स रिसीव करनी है, पेमेंट्स वहाँ पे भी लिंक होगा, जी लेकिन नंबर वन प्रोसेसेस बनाना क्यों जरूरी है कि जी प्रोसेस में क्या होता है। अगर मैं प्रोसेस नहीं बनाता, बीइंग स्टार्टअप मैं प्रोसेसेस जी नहीं बनाता तो मुझे क्या नुकसान है। एंड जी सेकंड, अगर मैं उन प्रोसेस ऑटोमेट नहीं करता तो मुझे जी क्या ड्रॉबैक है, क्या हर्डल आएगी मेरी ग्रोथ में। ग्रेट क्वेश्चन। सो क्यों बनाना जरूरी है, इसका वन लाइनर आंसर ये है, यू कैन नॉट मैनेज इफ यू डोंट मेजर। राइट। अगर आप अपनी एक्टिविटी को मेजर नहीं करते तो आप उसको इफेक्टिवली मैनेज भी नहीं कर सकते। स्टार्टअप्स में टीम्स छोटी होती हैं, एड हॉक बेसिस पे जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं कि फाउंडर ने या को फाउंडर ने जो सोचा वो खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे को सामने डायरेक्ट डेस्क पे बैठे हुए बता रहा है कि अच्छा ये मैंने कर दिया, ये मैं करने जा रहा हूँ, ये हमें करना चाहिए। तो स्ट्रेटजी बड़ी एड हॉक बेसिस पे जो है वो डिस्कस हो रही होती है। अब ये तो है 4 लोगों की टीम, लेकिन इनको आज से ही सोचना है कि जब हम 40 लोगों की टीम बन जाएंगे और टीम्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और इतना वक्त नहीं होगा कि फाउंडर को फाउंडर जो है वो हर बंदे से जाके इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। ऑल्दो राइट नाउ इट सीम्स कि यार क्या अब इसको लिखें और कि हम क्या करने जा रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो स्टार्टअप्स नॉर्मली यही गलती करते हैं कि वो एड हॉक बेसिस पे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आपके स्टार्टअप का डीएनए ही एड हॉकिज्म पे चल पड़ता है। इसीलिए आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी मतलब आप देखेंगे कि वही चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं कि एड हॉक बेसिस पे मैनेजमेंट दे आर आस्किंग समहाउ। अगेन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर है कि इवन छोटी से छोटी चेंज भी अगर आपको करनी हो किसी प्रोसेस के अंदर, तो उसकी पूरी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की मैच्योरिटी क्या है। इसको कहते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI। इसको मतलब एक्सप्लोर स्टार्टअप्स कर सकते हैं जाके देखें कि व्हाट इट इज। ये बेसिकली डिफाइन करती है कि आप जो है वो आपका प्रोसेस किस लेवल के ऊपर बेसिकली प्रिवेल कर रहा है। लेवल 1 के अपने पैरामीटर्स हैं, लेवल 2 के, लेवल 3, 5 लेवल्स होते हैं। हमारे पाकिस्तान में बड़ी कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लेवल 5 के ऊपर जो है वो बेसिकली प्रिवेल कर रही हैं। अब लाइक प्रोसेस डेफिनेशन में भी मैं आपको यहाँ पे मैं एक फ्रेमवर्क आपको बताऊंगा। उसमें व्हाट वी कॉल एक्रोनिम है DMAI सी, डिमैक बेसिकली इसको जो है वो प्रोनाउंस समटाइम लोग करते हैं। उसमें क्या कि पहले आप सबसे पहले डिफाइन करें कि आपका प्रोसेस होगा क्या, ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई करें कि आपके मौजूदा जो है वो
सॉरी पहले आप मेजर करें, पहले डिफाइन करें, फिर उसके बाद उसके मेजर करें। मेजरमेंट के अपने टूल्स हैं, उसको आप चाहे फर्स्ट में जो पेपर पे ड्रॉ कर लें, उसके बाद चाहे उसको डिफरेंट टूल्स हैं विजियो पे कर लें, या एक ऑनलाइन टूल है क्रिएटिवली, उसके ऊपर आप अपने प्रोसेसेस को मेजर कर लें, मैप कर लें बेसिकली। ठीक है, पहले आपने डिफाइन किया, लेट्स से कि जी सेल्स का प्रोसेस है। सेल्स के प्रोसेस में क्या है कि जी सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट डेटाबेस हम कलेक्ट करेंगे, उस डेटाबेस को एक्सेल के अंदर डालेंगे या अपने उस CRM के अंदर डालेंगे। तो क्या हुआ, प्रॉस्पेक्ट का डेटाबेस जो है उसके बाद कन्वर्ट होगा लीड्स के अंदर, कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया वो हमारी लीड्स बन गई। अब उस लीड्स को क्वालिफाई करना है एक प्री सेल्स के बंदे ने या एक बिजनेस एनालिस्ट ने या एक नॉर्मली सेल्स के जो लोग हैं वो खुद ही सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, बट सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट टू डू सो, कि लीड क्वालिफिकेशन का अलग से प्रोसेस है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कितना है, किस तरह से, उस तरह से आप पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसको मेजर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मैप कर लेते हैं, उसको विजुअल फॉर्म के अंदर ले आते हैं। दैट्स हाउ यू डू द विजुअलाइजेशन प्रोसेस डिजाइन की। और उसके बाद जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे गैप्स क्या हैं, ठीक है, और उन गैप्स को फिर आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हुए उनको मिटिगेट करते हैं। सो दैट्स हाउ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का जो है ना वो आप कह लें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM की फिलॉसफी के अंडर आप कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करते रहते हैं अपने प्रोसेसेस को टू इम्प्रूव इट इवन फर्दर। ठीक है, अब इमरान, देयर वाज समथिंग यू वांटेड टू आस्क और ऐड? बिल्कुल, इसमें अगर आपको एग्जांपल दें सोहेल भाई, हमारे यहाँ मैच्योर बिजनेसेस की, कि जिन्होंने प्रोसेसेस बनाए तो वो बड़ा बिजनेस बन गया और उनको कैसे स्केलेबिलिटी में हेल्प मिली, और अगर दूसरे एंड पे अगर कोई वही बिजनेस वो प्रोसेसेस ना बनाता तो इतने नंबर ऑफ क्लाइंट को सर्व ना कर सकता, इतने ऑर्डर्स ना प्रोसेस कर सकता। ठीक है, सो आप रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लीजिए। आप जो है वो लाइक दैट इज मोस्ट लाइक कॉमनली आप विटनेस कर सकते हैं। अगर एक रेस्टोरेंट है, उसकी स्पेसिफिक रेसिपी है और उसका टेस्ट लोग जो है वो पसंद करते हैं, उसकी कस्टमर बेस एक पर्टिकुलर एरिया में होगी ऑफ कोर्स। अगर स्टैंडर्डाइजेशन ना होती, अगर बिजनेस प्रोसेसेस ना होते, तो KFC, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया में कभी स्केल ना कर पाती। ठीक है, तो उनका जो है वो बर्गर फ्लिपिंग का मैकेनिज्म तक डिफाइन है कि आपकी पैटी जो है वो किस वेरीफाइड सप्लायर से आएगी, उनके वेंडर इवेल्युएशन क्राइटेरियाज हैं जिससे वो लोकल सोर्सिंग करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस जो है वो आप कंप्लाई करेंगे कि जब आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने चीज लेनी कहाँ से है। उसके बाद वंस इट्स इन द वेयर हाउस, तो फिर उसकी हाउस कीपिंग मतलब इन्वेंट्री कीपिंग किस तरह से होगी, और अनटिल इट्स ऑन द शेल्फ ऑफ योर किचन। तो हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी और सारे SOP डिफाइंड हैं। दैट्स व्हाई लाइक दे आर रनिंग देयर स्पेशलाइज्ड बिजनेस इन लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ये SOPs ना होते, बिजनेस प्रोसेसेस ना होते, तो फ्रेंचाइजिंग मॉडल कभी भी सक्सेसफुल इतना ना होता। स्टारबक्स की एग्जांपल आपके सामने है, मतलब यू कैन कीप काउंटिंग कि कितने फ्रेंचाइजिंग मॉडल चल रहे हैं, सबवे है। ठीक है, तो वो सारे का सारा स्केलेबिलिटी पॉसिबल ही तब हुई जब उन्होंने बिजनेस प्रोसेसेस को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मैप किया यानी लिखा अपने SOPs को, और उस SOP को कन्वे किया अक्रॉस देयर फ्रेंचाइजेस, और उनसे कंसेंट ली कि यू विल कंप्लाई विद दीज SOPs। और जब उन SOPs से कंप्लायंस नहीं होती तो फिर परफॉर्मेंस गारंटीज के अगेंस्ट जो है वो पेनल्टीज भी करते हैं अपने फ्रेंचाइजर को। ठीक है, सो दे वो क्योंकि Going उन्होंने back to the first question, because at this time आज constrained our questions already हमने काफी सारे discuss किए हैं. So how the digital transformation has evolved over the period of corona pandemic, और ये एक कितना important lesson है उन सारे businesses, उन सारे startups के लिए to understand कि ऐसी situations future में भी आ सकते हैं. ओके, सो पहले तो इम्पैक्ट समझने के लिए आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसको याद रखने के लिए यू कैन राइट डाउन एन एक्रोनिम विद यू, SMAC, SMAC, SMAC AIIT। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ। SMAC के S क्या है, सोशल मीडिया, M क्या है आपकी मोबिलिटी, मोबाइल एप्स, आपका A क्या है, एनालिटिक्स, C क्या है, क्लाउड, और उसके बाद
AI ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ET जब मैं कहता हूँ तो वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर आपकी 3D 4D प्रिंटिंग भी है, आपके जो है वो या आपने थैंक यू फॉर राइटिंग इट डाउन, तो उसमें जो है वो 3D 4D प्रिंटिंग भी आ गई, आपके IoT भी आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके डिजिटल ट्विन्स भी आ गए, आपके ड्रोन्स भी आ गए, यू जस्ट कीप नेमिंग इट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा जो है ना वो आप कह लें स्पेक्ट्रम बन जाता है। अगर सवाल को मैं ब्रेक डाउन करूं कि जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट बिजनेस प्रोसेसेस पे क्या है, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट? सो अब एक बिजनेस प्रोसेस को पकड़ लें और वन बाय वन इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट गिनना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अभी जो है वो डिजिटल पेमेंट्स, पहले कन्वेंशनल पेमेंट्स थी, अब डिजिटल पेमेंट्स को तो क्या है बेसिकली API आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम की अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, और वहीं से जो है वो रन टाइम पेमेंट हो रही है। उससे क्या हुआ, ऑफ कोर्स आपका लीड टाइम टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन वो कम हो गया। अब एग्रीकल्चर का पूछा गया है, एग्रीकल्चर AI फॉर एग्रीकल्चर एंड AI ऑटोमेशन डिवाइसेस। तो अगर इसी को एज एन एग्जांपल ले लें तो क्या है, पहले जो डायग्नोसिस का पार्ट था वो ह्यूमन ड्रिवन था प्योरली, और जो पेस्टिसाइड यूज की जाती थी टू किल दोज सेक्ट्स, क्या जो आपकी पेस्टिसाइड यूज की जाती है वो सारी ह्यूमन ड्रिवन थी। अब क्या हो रहा है कि ड्रोन्स के थ्रू जो है वो स्प्रेज हो रही हैं, और उससे पहले भी डायग्नोस्टिक जो है वो एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद हैं कि यू जस्ट स्कैन द लीफ ऑफ दैट क्रॉप, और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो आपको बता रही है कि इसके ऊपर सजेस्टेड स्प्रे कौन सा होना चाहिए। वो कैसे बता रही है कि जब उसने स्कैन किया लीफ को तो उसका इमेज वहां पे आ गया, तो इमेज प्रोसेसिंग पावर जो है वो सजेस्ट करती है कि ये कौन सी डिजीज या कौन सा इसको प्रॉब्लम है, और इसके अगेंस्ट वो अपनी डेटाबेस से रिकॉल कर रही है एल्गोरिदम के थ्रू कि कौन सा सजेस्टेड स्प्रे और कितनी इंटेंसिटी और कितनी विस्कोसिटी का जो सोल्यूशन है, महलूल है, वो यहाँ पे स्प्रे होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो पूरा कंप्लीट रेसिपी आपको बता रहा है। सो वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्पेशलाइज्ड जो वे था, नॉर्मली जो आपके व्हाट यू कॉल स्पेशलिस्ट आपके पेस्टिसाइड कंपनी से डॉक्टर्स नॉर्मली वो फ्रीक्वेंट विजिट्स करते हैं एग्री के लोगों के पास, और उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि दिस इज यू शुड बी डूइंग, बट हियर दे हैव ऑल द टाइम दैट डिवाइस विद देम, और जो है वो उस डिवाइस के थ्रू फॉरन स्कैन कर रहे हैं और फॉरन उनके पास सोल्यूशन है। सो दे डोंट नीड टू वेट फॉर दैट स्पेशलिस्ट टू कम ओवर और टू सजेस्ट देम कि व्हाट इज द राइट रेमेडी। अब डिवाइस जो है वो फॉरन बता रही है। अब इसमें आप देखें कितने कंपोनेंट हमारे डिजिटल के यूज हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कैसे चेंज किया। एक तो मोबाइल कंपोनेंट यूज हो रहा है, और दूसरा जो है वो मोबाइल कंपोनेंट इज ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, AI की कैपेबिलिटी, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो यूज हो रही है, और उसके मशीन लर्निंग ने जो है वो उसको किया कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। सो दैट्स हाउ एक प्रोसेस था डायग्नोसिस का, और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। तो इसी तरह जो है वो आप अकाउंटिंग की बात कर लें, अकाउंटिंग में जो है वो पहले क्या है, मैनुअल आपका सारा सिलसिला चल रहा होता था, आपके खाते बन रहे हैं, आपके पेएबल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद इरा आया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, ERPs आ गए आपके पास, जो कि स्टिल अभी चल रहे हैं, और स्टिल देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया। तो हम पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। सो बिजनेस प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर आप सेग्रीगेशन कर लें, लेट्स से इनवॉइस प्रोसेसिंग के, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप जहन में लेके आइए जो कि बिस्किट बनाती है। लेट्स से बिस्किट बनाने के लिए उसको जो है वो कितने वेंडर्स के साथ डील करना पड़ता है। उसके लिए उनको फ्लोर भी चाहिए, वो मैदा चाहिए, उसके लिए शुगर चाहिए, उसके लिए फ्लेवर्स चाहिए, एंड लेट्स से कि 10 मटेरियल्स यूज होते हैं टू मेक अ बिस्किट। लेट्स सपोज 5 से 10 जो हैं वो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। अब उन रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए कोई आगे 5 वेंडर्स हैं, सो विच मीन्स को 25 लोगों से उनका वास्ता पड़ रहा है एक बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। और उन 25 लोगों से जो है वो इनवॉइसेस भी उनको फ्रीक्वेंटली आ रही हैं।
सो पूरा एक सेक्शन बैठा हुआ है 5 से 10 लोगों का जो कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेएबल को प्रोसेस कर रहा है। ये अब उनका रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर बिजनेस प्रोसेस है। तो कि जी इनवॉइस इस फॉर्मेट के अंदर आएगी, ये जो भी उनका टेम्पलेट है उसके मुताबिक आएगी, ये उसका करंट बिजनेस प्रोसेस है। और आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस होगी कि ERP सिस्टम में डालेंगे और उसके बाद फिर जो है वो उसको पार्क किया जाएगा, फिर सुपरवाइजर साहब आएंगे, वो अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल के बाद जो है वो फिर आपकी पेमेंट्स जो हैं वो पेमेंट साइकिल में जाएंगी और फिर पेमेंट रिलीज होंगी। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रक्योर PO से चला ना, परचेज ऑर्डर से। ये परचेज वाले को जो है सॉरी प्रोडक्शन वाले को जरूरत पड़ी कि जी मुझे इतने टन्स या इतने जो है वो केजीज मुझे फलां चीज चाहिए और फलां डेट को चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है वो परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर हुआ। परचेज ऑर्डर के बाद जो है वो आपको डिलीवरी हुई। जब आपकी डिलीवरी के साथ जब गुड्स आपके पास आ गई तो आपने एक गुड्स रिसीव नोट दे दिया, GRN जिसको नॉर्मली बोला जाता है। उसके ऊपर जो है वो उसके बिल ऑफ मटेरियल भी था कि जी ये हमें इतने इतने पीसीज और इतनी क्वांटिटीज और इतने पैलेट्स, ये सारी चीजें चाहिए। ये अब आपका करंट एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको वो सारे का सारा मैप किया हुआ है और उसकी कंप्लायंस चल रही है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस करने में आपके लोग भी लग रहे हैं, आपका टाइम भी लग रहा है, ये करंट चैलेंज है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया, उसने कहा जी आप छोड़ें सारी चीज़ों को, इतना काम जो है वो लाइक आपके पास ईमेल आती है या आपके पास जो इनवॉइस आती है, आप उसको ओपन करते हैं, आप उसमें से डिटेल्स निकालते हैं, डिटेल्स लाइक के कस्टमर का नाम वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का एड्रेस क्या है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, अमाउंट कितनी है, फिर टैक्सेशन में कंसिडरेशन है कि वो टैक्स पेयर है या नहीं, उसके FBR के पोर्टल से आप जाके चेक कर रहे हैं उसका स्टेटस, तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली विद होल्डिंग टैक्स आपको पेमेंट पे जो है वो करना होता है। तो इतनी सारी कंसिडरेशन, वो सारी चीजें अकाउंटेंट देख रहा है। तो डिजिटल ने क्या कहा कि लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मेजर एरियाज हैं जिन्हें डिस्कस कर रहे हैं सर आपके साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉल्यूशन। जी जी, सॉल्यूशन पे ये मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक प्रोसेस की जो है ना क्लियर की है। अब इसका सॉल्यूशन सुन लें। सॉल्यूशन क्या कहता है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन व्हिच इज बिगेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब लोग हम बात करते हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बाद सबसे बड़ी जो एग्जीक्यूशन है ना वो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में, वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की है। और ये डिजिटल का कंपोनेंट है जो सबसे वाइडली यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि RPA के अंदर जो आपका OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इसको हम कैपेबिलिटी को बोलते हैं, कंप्यूटर विजन, जो क्योंकि AI से सवालात काफ़ी हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू डिग डीपर इनटू द सब्जेक्ट, उनके लिए एक रीजनेबल गाइडलाइन मिल जाए और वो RPA को जाके एक्सप्लोर कर सकें कि कैसे हम ह्यूमन एक्शन को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक यानी उसकी नकल कर सकता है, जो ह्यूमन कर रहा है वही जो है वो बॉट करेगा। ह्यूमन क्या कर रहा है, जैसे ही इनवॉइस ईमेल में ये सामने आती है आप उसके, तो उसको वो ओपन करके देखता है, PDF फाइल या एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल जो भी फॉर्मेट था उसने ओपन करके देखा, उसमें से वो वैल्यूज उठाई कि रेफरेंस नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, पेमेंट डेट क्या है, वो सारी उठाई उसने और किसमें ERP सिस्टम के अंदर डाल दी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब उसमें जो है वो ऑफ कोर्स टाइम लगता है। रोज मैं कह रहा हूँ कि एक बिस्किट बनाने के लिए 5 रॉ मटेरियल और 5 को प्रोक्योर करने के लिए 25 जो है वो आपके लेट्स से वेंडर्स, और कोई डिफरेंट मटेरियल्स की 4-4 इनवॉइसेस भी हैं तो 100 इनवॉइसेस बन गई आपकी मंथ की, आपकी लेट्स से 2 से 3 हज़ार इनवॉइसेस बन गई। तो आप ये देखें कितना बड़ा प्रोसेस है, इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस, और उसको प्रोसेस करने के लिए कोई 5-7-10 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ पेएबल को। एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कंपनी के अंदर दर्जनों प्रोसेस होते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइज जो है वो डजन से लेकर सैकड़ों तक जाता है। अब इसको कर्टेल करना है हमने। बॉट ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को जो है वो उसका PDF ओपन किया, ठीक है, उसके बाद उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया इंफॉर्मेशन को और उसको ERP के अंदर
सिक्योरली लॉगिन करके खुद ही जो है वो प्रोसेस कर दिया। कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसका डेमो भी दिखाऊं ताकि इट कैन मेक that इवन would be मोर great. सेंस। इट फील्स That लाइक अ would be मैजिक great idea. के नोबडी इज ऑपरेटिंग अ सिस्टम और सिस्टम Yeah. खुद ही चले जा रहा है। That would be great idea, sir. Should I go for the demo? Yes, why not? Absolutely, absolutely. अच्छा चले मैं आपको डेमो भी करता हूँ तो आप देखिएगा कि मतलब इट फील्स लाइक मैजिक कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो खुद ब खुद चल रहे हैं। इसमें अटेंडेड रोबोट्स भी होते हैं, इसमें जो है वो अनअटेंडेड रोबोट्स भी होते हैं। अटेंडेड वो होते हैं जिनको हम खुद अटेंड करके खुद ऑर्डर देते हैं कि ये करो, ठीक है। और अनअटेंडेड वो होते हैं जो खुद से ट्रिगर करते हैं डिफरेंट एक्शंस को कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जैसे ह्यूमन करता है ना कि जी ओके मेरे पास रिक्विजिशन आएगी तो आई एम सपोज टू एक्ट। इसी तरह आपके रोबोट को भी हमने टीच कर दिया कि जो है वो जैसे ही इनवॉइस आए आपने उसको फाइल को ओपन करना है और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और डेटा एक्सट्रैक्ट करके ERP में लॉगिन करना है आपने और लॉगिन करके आपने उस इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है, इनवॉइसेस भी पोस्ट कर देनी है और दैट्स डन लाइक या। चलें जी, ये मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ अभी। सो दैट इज जस्ट वन एग्जांपल। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक प्रोसेस की चीज दिखा रहा हूँ। इसी तरह लाइक देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। जी मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन इमरान मुझे बताइएगा फ्रॉम देयर आई कैन शेयर द स्क्रीन ये from नीचे the navigation. Okay, share screen. Yeah, here we go. और So share screen में entire जाके screen. Okay, नहीं, share entire video audio. एप्लीकेशन विंडो Okay, application window. तो जो Entire पर्टिकुलर screen विंडो मुझे स्विच भी करनी है ना, ठीक है ठीक है। Okay, okay जी, now sharing my screen. So do let me know when you are able to see my screen. या ओके सो मैं आपको जो है ना UI पाथ का डेमो दिखा रहा हूँ। बेसिकली UI पाथ जो है वो इस वक्त लीडिंग कंपनी है जो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को डोमिनेट कर रही है मार्केट के अंदर। $10 बिलियन कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज SaaS में। अभी माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, SAP और IBM उसका जो है वो मतलब ये ऑल कंपनीज हैव जंप्ड इनटू दिस स्पेस। सो स्टिल UI पाथ इज अ लीडर इन दिस डोमेन and I am humbled to be a certified business analyst in UiPath in robotic process automation. Input data from an invoice into SAP. The robot will open the MPO invoices folder and download ईमेल में आपके पास इनवॉइस आई, ठीक है, और ये खुद ही उसने ओपन की, उस इनवॉइस की PDF को उसने ओपन किया, ठीक है, उसने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इस तरह से इनवॉइस डेट उठाई, नाम उठाया, इनवॉइस का रेफरेंस नंबर उठाया, उसने जो है वो डिस्क्रिप्शन उठाई और ये साथ टैक्स रेट भी उसने उठाया, tax rate, ठीक है। सो टोटल अमाउंट उसने डाली जो उसने आपको नजर आ रही है, contact information, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस भी उठा लिया उसने। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये सारी जो कि ह्यूमन एक कर रहा था। Let's run the workflow in the debug mode so we can see the details of how the robot is performing the work. The debug mode is a very slow ये mode, इसका so we सारा can see IDE it है, step by step. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिससे आप बॉट को ट्रेन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये उसका प्रोसेस बेसिकली डिजाइन कर रहा है, listed in the output pane. यहाँ पे आपने सारी ये ट्रेनिंग का मॉडल है कि आपने बॉट को कैसे ट्रेन करना है। ये डेवलपमेंट भाई वीडियो की वॉइस उसका कर दिया, आपकी और वीडियो की दोनों की वॉइस आ रही है। अच्छा, इसकी वीडियो की वॉइस म्यूट कर दूं मैं ताकि फिर आप सिर्फ बात। चले, बिल्कुल इसको मैं जो है वो स्किप करके आपको इसके ऑपरेशंस में जो है वो लेके जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, अभी ये SAP का उसने ओपन किया है वेंडर अकाउंट, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये SAP का मॉड्यूल उसने ओपन किया है और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन उसने उठाई थी ये उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेसिकली ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है। ये देखें, अभी खुद ही फिल कर रहा है इसको। It will be done by a robot.
ये उसका सारा इंटरफेस जैसे ह्यूमन सारी चीज़ों को करता था, इसी तरह जो है वो ये पूरे सारे सिस्टम की ये क्रिएशन जो है वो भी ऑटोमेशन से हो सकती है, जो बेसिकली एक मैनुअल जो है ये इंसान जो है वो सैप के अंदर जाके इस चीज को क्रिएट करे। एग्जैक्टली यू गॉट इट राइट। सो ये इसी तरह, सो ये एक प्रोसेस है। इसी तरह लाइक यू यू कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। हर प्रोसेस को जो है, मैं आपको कुछ और प्रोसेसेस भी दिखाता हूँ, लाइक पोटेंशियली कितने बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं जिनको आप जो है वो बेसिकली कर सकते हैं ऑटोमेट। सुहेल साहब, पाकिस्तान में रहते हुए कितनी ऐसी एग्जांपल्स हैं, कैसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस मॉडल को यूज कर रही हैं और इतनी इस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन तक उन्होंने अचीव करी है? वेल टू बी ऑनेस्ट, कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा है, ऑप्शंस कम है। तो आई वाज लाइक मतलब अभी अभी जो है ना वो एक्सेप्टेबिलिटी लेवल कम है रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मतलब इट्स बिन कपल ऑफ इयर्स वी आर बीन प्रीचिंग दिस थिंग कि भाई इस तरह से ये होता है। डेमोज भी किए हमने, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी करके इवन दिखाए काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, और एंड के ऊपर दे एंड अप विद के अच्छा जी हमारे अभी तो लोग पूरे सही तरह से काम नहीं कर रहे, आप रोबोट्स लगाने चलें। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन लाइक यू नो शेयरिंग दिस इनसाइट विद यू, दैट्स अ ड्रॉबैक, बट स्टिल जो है ना वो मतलब दिस इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। ठीक है, ये इंटरप्राइज क्विक बुक इंटरप्राइज का हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था जिसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हमने अपने ब्रांड का नाम रखा था रोबोमेशन। रोबोमेशन जो मतलब जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे फोकस हमारी प्रैक्टिस थी, उसको हमने रखा रोबोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक व्हाट रोबोमेशन इज। सो ये सारा उसने जो है वो मतलब वही प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा, मैं पोटेंशियल प्रोसेसेस आपको जो है ना वो दिखाने लगा था कि कौन कौन से, एक तो अकाउंटिंग का सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस दिखाया। सो लाइक हाउ मेनी प्रोसेसेस can be automated potentially. So it's Meanwhile, we have it's a a question tremendous from opportunity. Farhan as well. Yeah. He's asking about, can you recommend theory resources for system process design? सिस्टम प्रोसेस डिज़ाइन के लिए थ्योरी मैंने आपको बताया स्टार्ट में। इसको जो है वो डिफाइन एक्रोनम, एक सेकेंड एक्रोनम मैं करेक्ट कर लूँ ताकि बिकॉज प्रोसेस डिज़ाइन फ्रेमवर्क, सॉरी प्रोसेस डिज़ाइन जो है ना वो बेसिकली सॉरी या ये DMAIC ये फ्रेमवर्क जो है ना बेसिकली आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। DMAIC जी, DMAIC ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लीन सिक्स सिग्मा की जो थ्योरी है वो भी इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। उसकी बेसलाइन बेसिकली ये है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि पहले डिफाइन, देन मेजर, देन एनालाइज, देन इम्प्रूव और फिर कंट्रोल, ठीक है। ये इसका कंप्लीट साइकिल है बिजनेस प्रोसेसेस का, ठीक है। कि आप पहले डिफाइन करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि क्या है क्या, फिर उसको आप मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, फिर उसको आप एनालिसिस की फेज में लेके जाते हैं, ठीक है। और ये दिस साइकिल्स कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। हर स्टेप के ऊपर ऑफ कोर्स आप जो है वो सिंक कर रहे होते हैं चीज़ों को। आप कंट्रोल को भी सिंक किस तरह से कि हाउ यू कैन मेंटेन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ योर बिजनेस प्रोसेसेस इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, either you are defining it or measuring it or analyzing it or improving it, ठीक है। तो इसको आप डीपर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो AI की डिफरेंट अगेन कैपेबिलिटीज हैं। इफ यू आर interested to dig deeper
more into it, so just write it down, like digital transformation impact on business process automation, या automation की बजाय right keyword होगा business process management. अब ये पहले ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एज आई सेड कि वंस यू मेजर देन यू कैन मैनेज, तो मेजरमेंट के लिए पहले जो है ना वो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन होता है, जो आपकी डेटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं कि प्रोसेस यानी आप जो है वो कहाँ से आपका प्रोसेस चलेगा, उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि इन्वॉल्व हो रहे होंगे डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, ठीक है। तो एआई में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पहले तो ये समझें कि एआई की कैपेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, ऑडियो एनालिटिक्स, ये कैसे कैसे आपके सोल्यूशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे अभी हमने बात की रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के, इस प्रोसेस में जो है ना वो कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है। एआई की जो कैपेबिलिटी है ना कंप्यूटर विजन की, जो कि डॉक्यूमेंट को रीड कर रही है, वो असल में यूज़ हो रही है, पूरे सारे के सारे कंपोनेंट्स नहीं यूज़ हो रहे, ठीक है। सो जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ, ये सारे का सारा काम है आपके लाइक आर्किटेक्चर्स का, आपके सोल्यूशन कंसल्टेंट्स का, कि वो पहले आपके बिजनेस प्रोसेस को देखें और उसके मुताबिक फिर आपको सजेस्ट करें कि इसमें जो है वो आपको क्या चीज़ बेस्ट सूटेड रहेगी। आइदर यू नीड यू नो सिंपल प्रोसेस रीडिज़ाइन। अच्छा, ऑटोमेशन भी जो है वो हर जगह पे नहीं ज़रूरी होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट से जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू ऑटोमेट एवरीथिंग। ऑटोमेशन के भी अपने क्राइटेरियाज हैं कि कौन सी चीज़ आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें जो है वो रेपिटेटिव होना ज़रूरी है, उसका आपका ह्यूमन इंटेंसिव होना ज़रूरी है। सो देयर आर लाइक प्रोसेस इवैल्यूएशन के इसको ऑटोमेट करना है या नहीं करना, उसके भी जो है ना वो लाइक जी जी भाई ये दिस इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर डिजिटल बिजनेसेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये तो जो बहुत ही कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं वहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस बनाना, प्रोसेस मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑटोमेशन, उस पे थोड़ी सी जरूर बात करें कि जो बहुत ही कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं या ट्रेडिशनली नॉन टेक बिजनेसेस। जी अच्छा, उसमें ना मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो नॉन टेक और बिल्कुल कन्वेंशनल बिजनेस हैं, अब आपने प्रोसेस बना के उसको बेसिकली विजुअलाइज करना है और शेयर करना है ना। आप एक इवन सादा कागज पे स्टेप बाय स्टेप लिख लें कि हम ये काम इस तरह से करेंगे, ठीक है। कि अगर पेमेंट्स की प्रोसेसिंग आपको याद होगा, मतलब ऑफ कोर्स अर्ली डेज में आपने भी इंटर्नशिप्स या बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वहां पे ना एक एम्प्लॉय हैंडबुक हुआ करती थी, अभी भी होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं कि दे हैव एम्प्लॉय हैंडबुक। और अगर आप किसी प्लांट पे विजिट करें तो वहां पे उन्होंने आवेजा किए होते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की ये रिक्वायरमेंट्स है कि जी ग्लव्स पहन के जाएं, यहाँ पे आपने हेलमेट रखना है, यहाँ पे मतलब डोंट टच इट, ये जो है वो बेसिकली इट्स हॉट। सो छोटी छोटी चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, इसी तरह पेमेंट से रिलेटेड, इसी तरह जो है वो आपके एचआर से रिलेटेड, हर चीज को you don't need to be high tech for business process management, business process improvement। आप सिंपली उसको जो है वो एक वर्ड फाइल के अंदर, एक आप पीपीटी के अंदर जो है ना वो ड्रॉ कर लें, वो जैसे स्मार्ट शेप इंसर्ट करते हैं ना आप, के बॉक्स बनाएं, उसके अंदर लिखेंगे जी ये प्रोसेस है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स। इनिशियल क्लासेस में हम पढ़ते थे, जिन्होंने इवन कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा, तो डीएफडी हम पढ़ते थे, डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो वो क्या है कि जी इंफॉर्मेशन के फ्लोज को आप डिटरमिन कर देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या है, यस और नो, ठीक है। अगर नो है तो फिर क्या होगा, यस है तो फिर क्या होगा। सो व्हाट इफ एनालिसिस को आपने विजुअलाइज कर दिया, उससे क्या हुआ कि जो लेस इंटेलिजेंट वर्कफोर्स कह लें या जिसको कह लें कि टेक्निकल या ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं, they will be very clear at each stage कि हमें करना क्या है। आप बैंक्स में चले जाएं, मतलब नेशनल बैंक में आप चलें, मतलब वो तो इतना ज्यादा डिजिटाइज, खैर अब तो बहुत डेवलपमेंट आ चुकी है, लेकिन आप 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब बिल्कुल सारे मैनुअल थे, तो फिर भी देयर वाज सम एसओपी।
तो इसी तरह जो नॉन टेक सीधे साधे बिजनेसेस जिनके पास बहुत कोई इतनी स्किल भी नहीं है, इतने टूल्स भी नहीं है, स्टिल दे कैन लेवरेज दिस फिलॉसफी। बिजनेस प्रोसेसेस जो है ना वो मोर ऑफ अ माइंडसेट गेम। पहले आप ये अपने जो है वो बना लें माइंड कि आपने जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू चीजें लेके चलनी है। आपने अपनी सेल्स टीम को एक प्रोसेस दे देना है कि दिस इज हाउ यू नीड टू कंडक्ट द सेल्स, दैट्स हाउ यू कैन क्लोज योर डील इवन फास्टर। जिस तरह से आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं कि जी पहले आपने लीड क्वालिफिकेशन सही करनी है। अगर गलत लीड के ऊपर आप टाइम लगाते रहे तो आप सेल नहीं क्लोज कर सकेंगे। गलत प्रोस्पेक्ट को आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट पिच करते रहें, आप जो है वो उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो क्या मतलब इसका हुआ कि इम्पोर्टेंट है कि आपका लीड क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा रोबस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनसे आपने जैसे ही आइडेंटिफाई किया तो आपने दूर भागना है उस प्रोस्पेक्ट से, सो यू कैन फोकस ऑन द राइट प्रोस्पेक्ट्स। आपको बताया गया है कि डिसीजन मेकर से आपने बात करनी है, क्योंकि अगर वी एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर, हमारा काम ही सी लेवल के साथ है। अब मैं एक मिडिल मैनेजर के साथ जितना मर्जी उसको ट्रांसफॉर्मेशन समझाता रहूं, वो उसके पास डिसीजन पावर ही नहीं है। तो मेरी लीड का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं सी लेवल के साथ बात करूंगा जो कि डायरेक्टली स्ट्रेटजी को जो है वो ड्राइव कर सकता है, बोर्ड के अंदर प्रपोजल दे सकता है। ही और शी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर ओवरऑल कि जी ये चेंज हमें लेके आनी है। तो मैं एक लो लेवल के साथ, तो मैंने अपना लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इवन यहाँ तक जो है वो हमने लाइक डिटरमिन किया हुआ है कि किसके साथ बात करेंगे किसके साथ नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट की बात करता हूँ। आप एक कन्वेंशनल बिजनेस है, आपके पास तेल की डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ग्रीसें और तेल बेचते हैं, बदामी बाग में आपका बिजनेस है, ठीक है। अब इससे अब उनका तो सारा खातों पे सिलसिला चलता है, ठीक है, हवाले होते हैं। अब उसके लिए सीईओ फास्ट पीपल के साथ बात करना बेकार है, उसके लिए वो डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि प्लांट पे जो तेल और ग्रीस जो है ना वो या तो प्लांट का जीएम करेगा या फिर प्रोक्योरमेंट मैनेजर करेगा। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वो डिफरेंट होगा, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो हर प्रोसेस के अंदर जो है ना एसओपी बिजनेस प्रोसेस डिफाइन करना है कि सेल्स का प्रोसेस रन करना है तो ये होगा, अब मार्केटिंग करेंगे तो ये होगा। अब एक नॉन डिजिटल बिजनेस है और उसका कस्टमर फील्ड में फिर रहा है, उसके लिए फेसबुक एड्स इररेलेवेंट है, ठीक है। और एक ऐसा बिजनेस कि जिसका कस्टमर ही सारा डिजिटल पे बैठा है और वो सामने जाके बिलबोर्ड लगा दे जो है वो जोहल टाउन की बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके, और वो पूरे मंथ की एटीएल बीटीएल कैंपेन जो है वो बाय कर ले, और वो क्या नाम है आपका लिबर्टी में भी चाहे वो जो है उसका बड़ा सारा लगवा दे, उसका कस्टमर ही नहीं है वहां पे। आप और मैं कितनी दफा लिबर्टी जाते हैं और वहां पे कितनी दफा हम नोटिस करके बाइंग डिसीजन करते हैं? नो, मोस्ट सुबह से आप कितनी दफा फेसबुक देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ। वहां पे जो ऐड आ रहा होगा वो ज्यादा, वो सस्ते में ऐड मिल रहा है और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, मैं बाइंग डिसीजन भी वहां से ले रहा हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपके गोल्स क्या है, उसके मुताबिक आप अपने जो है वो बिजनेस प्रोसेसेस, और ये प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्ट्रेटजी ड्रिवन होते हैं कि आपकी अपनी क्या है, आपका तरीका वारदात क्या है, आपके बिजनेस करने का तरीका। एक तो बिजनेस प्रोसेसेस डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान के इकोसिस्टम को देखते हुए जहाँ पे स्टार्टअप फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, what are the top 2-3 advice or tips that you would want to give to the startups at this moment? जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना बिजनेस मॉडल कैनवस पकड़ें, एडवाइस 1। उस बिजनेस मॉडल कैनवस के हर कंपोनेंट को जो आपने काम करना है उसका वर्कफ्लो बनाएं, उसके स्टेप्स लिखें कि स्टेप 1 ये है, और उन स्टेप्स के मुताबिक जो है ना वो फिर आप अपना एग्जीक्यूशन करें। विदाउट इट जो है वो फिर अगेन एड हॉक बेसिस पे होगा, वो आपका वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल दूंगा आपको कि बिजनेस मॉडल कैनवस का, क्योंकि आप वही प्रीच कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल कैनवस में जो आपका की पार्टनर्स का कंपोनेंट है, अब की पार्टनर्स अटैच करने के लिए आपका बिजनेस प्रोसेस क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस ये होगा
कि पहले आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ कोर पार्टनर्स यू नीड टू हैव, ठीक है। जो हमने अभी फ्रेमवर्क पढ़ा है DMAIC का, उसको मैं एग्जीक्यूट करने लगा हूं टू डिवाइस योर बिजनेस प्रोसेस फॉर योर स्टार्टअप और एनी बिजनेस। आपने कोर पार्टनर्स लेने हैं, ये आपने डिफाइन कर लिया। अब मेजर क्या करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल पार्टनर्स हैं और उनकी लिस्ट क्या है, उनकी लिस्ट बना ली आपने कि जी पेमेंट साइड पे आपको पार्टनर लेने हैं, इजी पैसा, जैज कैश, पे पैक जो सर्विस आई है, इसके अलावा सिम और सो एंड सो फोर्थ, 4-5 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसमें से टॉप 3 के साथ आपने जाना है, ये टॉप 5 के साथ आपने जाना है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। आपने क्या किया, डिफाइन करके मेजर कर लिया, ठीक है। और साथ में चूंकि आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपने लॉजिस्टिक पार्टनर्स की बात हो रही है, लॉजिस्टिक पार्टनर, आपने कहा जी हम चीते के साथ भी कर लेंगे, करीम डिलीवरी के साथ भी MOU कर लेते हैं, उधर से TCS के साथ भी कर लेते हैं, हम इंटरनेशनल भी करेंगे तो चलें जी TNT और DHL और UPS के साथ भी कर लेते हैं, या फिर हम कोई और थर्ड पार्टी शिपिंग प्रोवाइडर जो है वो करेंगे। तो ये आपने अगेन लिस्ट ऑफ लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कर ली, उधर पेमेंट का भी हो गया, लॉजिस्टिक का भी हो गया, उधर से आपने वेंडर भी एक बात है लिस्ट बना ली। तो 3 लिस्ट बन गई है आपकी की पार्टनर्स की। इस तरह से आपकी लिस्ट वो 3 से जो है वो 13 भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रोसेस एक ही है कि आपने डिफाइन किया कि विच पार्टनर यू नीड, देन फिर उस पार्टनर की आपने लिस्ट बना ली प्रोस्पेक्टिंग की, ठीक है। फिर आपने अपना पार्टनर इवेल्युएशन क्राइटेरिया, अब पार्टनर इवेल्युएशन क्राइटेरिया एनालिसिस की फेज है, ठीक है। वो क्या कहता है कि कौन सा पार्टनर आपके साथ ज्यादा स्मूथली, मतलब जिसका लीड टाइम कम है, जिस इजी टू एक्सेस है, सर्विसेज अच्छी हैं, कि अगर हमने पेमेंट इंटीग्रेशन करनी है तो कुछ लोग लाइक दे एक्सपीरियंस हार्ड टाइम टू सिंक देयर ई कॉमर्स पोर्टल्स विद इजी पैसा, जैज कैश। वाई? बिकॉज वो जी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते जैज कैश वाले, या इजी पैसा के साथ हमें टेलेनॉर के साथ कम्युनिकेट करते हुए टाइम लगा, तो कस्टमर एक्सपीरियंस वाज लाइक लिटिल बिट कि वहां पे कम्बरसम था। अब क्या कहते हैं कि जी सिम वाले ज्यादा अडेप्टेबल, वो जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, इट कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है, कि सिम जो है वो जल्दी से आप अप्रोच करें और वो उनका अकाउंट मैनेजर आपके आएगा, मर्चेंट वेरीफाई करेगा और यू आर डन, यू आर गुड टू गो, ठीक है। या उससे भी ऑनलाइन कोई एक फास्टर सोल्यूशन है जी, आप इंटरनेशनल कर रहे हैं और आप ट्रांसफर वाइज से अकाउंट खोलें और ये देयर यू गो, एक दिन के अंदर आपका पेमेंट सेटअप हो गया, ठीक है। तो आपने एनालिसिस की फेज के ऊपर ये कंपेयर की अपनी ऑप्शन। पहले आपने क्या किया था, डिफाइन करके मेजर कर लिया था ना लिस्ट। अब आप एक एक्सेल शीट पकड़ें या गूगल डॉक ओपन करें, गूगल शीट ओपन करें, वहां पे आप अपना ये सारे क्राइटेरियाज लिख लें और हर क्राइटेरिया को आप स्कोर देते जाएं कि ईज ऑफ प्रोसेसिंग का 10 में से इतने मार्क्स, इसके साथ जो है वो आपके लीड टाइम के कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इतने मार्क्स, कस्टमर सर्विसेज के इतने मार्क्स, और वो जो ट्रांसफर वाइज है लेट्स से वो जी 2% ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो जो है वो चार्ज कर रहा है, तो इसके इतने मार्क्स। और जो दूसरी ऑप्शन जो कि स्लो है लेकिन सस्ती है, ठीक है, तो इसके इतने मार्क्स। तो आपने ये सारे का सारा पार्टनर इवेल्युएशन क्राइटेरिया के अंडर एनालिसिस किया कि कौन सा पार्टनर कहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, किसके साथ आपको पहले जाना है, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपना प्रोसेस जो डिफाइन किया था, मेजर किया था, उसको आप अब एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट यू हैव सेट सो फार। अब इस क्राइटेरिया को भी आपने कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जाना है, बेहतरी इसके अंदर लाते जानी है कि उसके साथ आप निगोशिएट कर सकें जी। प्रो पे एक और सर्विस है, वो हाँ वो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, उनके साथ निगोशिएट करें कि जी हमारी पेमेंट्स इतने पर मंथ होंगी तो आप हमें डिस्काउंट दें लेट्स से। तो इट्स लाइक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजेशन के कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके कम हो, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो, आपकी जो है जब पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है पार्टनर्स का तो यू कैन ऐड मोर पार्टनर्स। So that's how you keep optimizing, keep improving your business process of taking the partner on board, ठीक है। अब onboarding का अपना प्रोसेस है। अब उस onboarding में फॉर्म के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रीलिमिनरी आपको कलेक्ट करनी होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी होगी विद योर पार्टनर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप काउंट करते जाते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कंट्रोल व्हाट यू हैव डिफाइंड सो फार, कि उससे कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही, जो आपने डिफाइन किया था उससे हटके तो नहीं कोई काम हो रहा। अगर वो हटके होगा, इस मीन योर पीपल और योरसेल्फ आर वायलेटिंग दैट बेस्ट प्रैक्टिस व्हिच यू हैव डिफाइंड बाय योरसेल्फ। सो उससे डेविएशन होगी तो फिर तो सेट करने का मकसद बहुत हो गया ना। So that's how you sync your strategy, your of defining your business processes, measuring it, and then analyzing, improving, and control. सवाल आया, business process management is important for any company because it has ability to enhance efficiency and productivity. It can help in cost reduction and minimize risk. बिल्कुल अस्मा असलम सही फरमा रही हैं। That's what we are preaching and practicing, and that's what we are talking about. So agree. Ask CGI, could you recommend theory? Okay, theory की हमने already बात की है। अच्छा, process visualization के लिए आप Visio को थोड़ा सीखना शुरू कीजिए, या फिर एक टूल है Creatively। तो इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस नोटेशन BPMN 2.0, ये आप कीवर्ड लिख लीजिए, इसको आप देखिएगा कि इसकी प्रैक्टिसेस क्या है। बिकॉज जब आप प्रोसेस डेफिनेशन करते हैं ना, तो उसमें आपको बताएगा कि ये जो चौकोर शक्ल है इसका मतलब है डिसीजन पॉइंट, ये जो गोल शक्ल है इसका मतलब है फर्दर कंसिडरेशन, ये जो एरो है इसका मतलब है गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस। सो वो जो DFD की बेसिकली UML है, ठीक है। सो इसको आपने सीखना है इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट और एनालिस्ट, और या इसको प्रॉपर आप अगर तरीके से करना चाहते हैं तो it will help you, it will be a good skill to add on in your personal portfolio as a professional. और ऑफ कोर्स आप 5 लोगों से या 3 लोगों से ख्वाब देख रहे हैं कि आपने 30 लोगों की और इंशाल्लाह 3000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, तो आज से ही वो ABC अपनी ठीक करें। ये अल्फाबेट्स ABC आप मॉन्टेसरी में होते हैं फिर भी ABC वही रहती है। आप PhD में चले जाएं या उससे बाद आप नई डेवलपमेंट भी करें तो फिर भी फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम। तो अगर आप वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी में चैंपियन बनना चाहते हैं और अपनी वर्क स्पेस को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, तो दीज आर द फंडामेंटल्स यू शुड डेफिनेटली कंसीडर लर्निंग। कि बिजनेस प्रोसेस की जो साइंस है उसको खुद समझें और चलें। सीखने में टाइम लग सकता है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस माइंड से सोचें, किसी बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोफेशनल को हायर कर लें, आप किसी एजेंसी से बात कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प, दैट्स व्हाट वी डू विद द बिजनेसेस। We help them to improve their processes, design their processes. अब 3 टर्म्स का स्टार्ट में मैंने नाम लिया था, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन है और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। तो इंप्रूवमेंट क्या है? जो कॉन्टिन्यूस कंट्रोल की हम इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे। डिजाइन क्या है? कि ऑफ कोर्स यू गिव इट अ विजुअलाइजेशन एंड यू डिजाइन के हाउ थिंग्स विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, फंडामेंटल री थिंकिंग कि आपका मौजूदा जो सिलसिला है वो फ्यूचर में कैसा चलेगा। कि उबैद साहब मेरे से बात करेंगे, सोहेल साहब प्लीज कम ओवर एंड एनालाइज LGU बिजनेस प्रोसेसेस, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं तो और हम फ्यूचर में कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। तो अप्रोच मेरी ये होगी कि पहले मैं इसको एज इज मैप करूंगा, एज इज कि जैसे जो है, इसको हम कहते हैं एज इज मैपिंग। वो विजुअलाइजेशन टूल्स के ऊपर मैं इनके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन ही होगी कि इसमें गैप्स क्या क्या हैं, और उसके नीचे जो है रिकमेंडेशंस आएंगी कि मौजूदा प्रोसेस के अंदर क्या बेहतरी लाई जा सकती है। उसको हम कहेंगे बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। या अगर मैं देखता हूँ ये प्रीलिमिनरी एनालिसिस के बाद जो है वो ये डिफाइन किया जाता है कि री इंजीनियरिंग होगी या इंप्रूवमेंट होगी। उबैद साहब कहते हैं कि जी आप छोड़ें हमारे प्रोसेसेस को, हम क्या कर रहे हैं, आप हमें री इंजीनियरिंग यानी कंप्लीट स्क्रैच से जीरो बेस बजटिंग जैसे हम करते हैं फाइनेंस के अंदर, कि जी आप हमें बताइए कि ग्लोबली जो है वो लेट्स से जी बेंचमार्क हमने हार्वर्ड और MIT को रख लिया, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे चलती हैं, हम वैसा सिस्टम इंप्लीमेंट करके दें। So there are like multiple approaches to look at suggestion from our audience। वो कह रहे हैं कि आप कोई बुक या कोई साइट या ब्लॉग सजेस्ट कर ले फॉर बिजनेस प्रोसेस लर्निंग। आपने कुछ सॉफ्टवेयर भी बताए थे, कुछ बुक या मैनुअल्स भी इनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो वकार साहब ने कुछ सवाल किया है,
आप फॉलो करना शुरू करें IIBA को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस। यहाँ पे लोकल चैप्टर को मेरे दोस्त खुरम गौरी साहब रन करते हैं इस्लामाबाद में, आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप वाइट, हाँ जी, IIBA को आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक टूल है बिजाजी, BIZAGI, बिजाजी, उसका आप जो है वो ब्लॉग जाके पढ़ना शुरू कीजिए। उनका टूल भी है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर। दे हैव लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो BPMN 2.0, BPMN भी आप सर्च कीजिए, BPMN, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। सोहेल भाई, जी, thank you very much for an enlightening session. Sorry for being the bad guy because I'm the No, no. timekeeper. It's okay. तो सर आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर दें, उसके बाद फिर Okay, Imran, thank you. Sohail, I think it was very not only intuitive, but it was mind-boggling. Or plus, since it relates to my field, that is computers, AI, machine learning, and deep learning, and all that stuff, it was very interesting. Unfortunately, today I had a backache. That is why I am now standing. But you can see my interest that I did not leave just because at times my mic कैमरा ऑफ कर देता था ताकि आप ये ना देख सकें कब मैं बैठा हूँ और कब खड़ा हूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इमरान को समझाता हूँ और मुख्ताबर को आपके प्रोसेस को लेके आगे चलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 4 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी LGU, यहाँ पर बच्चे आते थे, बच्चे आके अपना एक फॉर्म भरते थे, प्रोस्पेक्टस खरीदते थे। उस फॉर्म को भरने के बाद वो एक वहाँ पे 10 बंदे बैठे होते थे, वहाँ एक बहुत लंबी लाइनें पड़ी होती थी। जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स थे वो फिर उनको फिल करके देते थे, फिर उसमें गलतियां निकलती थी, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे, फिर उनका एक एग्जाम लिया जाता था, फिर उसकी मेरिट लिस्ट बनती थी, ये सारा कुछ होता था। अभी इसको हमने ऐसा ऑटोमेट किया है कि ऑनलाइन अब फॉर्म भरा जाता है और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं या व्हाटएवर, द होल थिंग गोज इनटू द डेटा। उस डेटा फॉर्म में उसको उसकी डेट बर्थ पता चल जाती है, किस दिन उसका टेस्ट होगा। टेस्ट इज आल्सो डन ऑटोमेटिकली, उसकी एनरोलमेंट इज डायरेक्टली डन, कोई उसमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। उसने अब एक दफा जब अप्लाई किया तो उसको एक टेम्पररी नंबर मिल गया, उस नंबर के तहत उसको एनरोल कर दिया जाता है जिस भी वो सब्जेक्ट में टेस्ट देना चाहता है। उस टेस्ट की डेट उसको ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट हो जाती है विद नोबडी इनसाइड, आई मीन नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ये कोविड ने एक्चुअली किया ये सारा, और ज़ाहिर ये प्रोसेस हमारा बड़ी देर से चल रहा था, तो इसलिए उसको हमें इम्प्रूव करने में आसानी हुई। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज डन इज कि मेरिट लिस्ट पे जब उसका नाम आ जाता है एंड ही सेज कि जी मैंने बिल्कुल इसमें दाखिला लेना है, उसको एक उसका चालान जो है वो इशू हो जाता है, वो चालान जाके जमा कराता है, और जब चालान जमा हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो उसको एक प्रॉपर किस्म की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। यहाँ से लेके उसके बाद एंड तक जब तक उसको डिग्री नहीं मिलती, वो ऑलरेडी जो है वो हमारी ERP में ऑटोमेट हुआ हुआ। वो ये है कि जब भी वो नया पहले सेमेस्टर में जाएगा, जो जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उनमें जिनमें वो पसंद करता है एनरोल हो जाएगा, उसका एनरोलमेंट और उसके जो कंटेंट है वो उसको अवेलेबल हो जाएंगे मॉड्यूल में, और वो पूरी उसके थ्रू आउट असेसमेंट भी ऑटोमेट होगी। हमारा असेसमेंट सिस्टम जो इस वक्त है वो नॉट ओनली दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय HEC बट इट इज नाउ बीइंग इवन ऑफर्ड इंटरनेशनली। कहने का मकसद ये है कि मैं का जवाब देना चाहिए रहा था, एंड आई थिंक इमरान इज वेरी मच प्रिवी टू ऑल दिस। हमने ये सारा ऑटोमेट इसलिए किया, नॉट कि हम किसी लोगों को काम करना चाह रहे थे, जो कि मेरा पॉइंट आपके साथ डिफरेंट है कि अगर हम ऑटोमेट कर देंगे तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसको हमने जॉब्स देनी है उनके लिए क्या करेंगे। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि पहले ऑटोमेट कर लें, इनको जॉब्स और तलाश कर देंगे, इनको हम एंटरप्रेन्योर्स बना देंगे। दिस इज व्हाट इज आवर एम, but we can talk a lot on this later because अभी इमरान जो है वो काफी जिटरी हो रहा होगा because इसका next time शुरू हुआ है and we are slightly concerned about timings. So thank you very much, Sohail. Once again, we'll be in touch. I think एक और ग्राइंड आपको मिल गया, तो अभी इंशाल्लाह we'll continue. Thank you very much. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। सोहेल भाई इस लॉर बेस्ड, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारे ग्राई है वैसे ही लॉर के। Inshallah ji, and really great to witness that you have done so far in your institution, or mashallah you have a great team and a very good addition in your squad. So Imran is definitely will be bringing new players and new thought leadership to improve your system and even market positioning of your institution in the marketplace.
So that's how I think great things come when Well, great. I never thought what is business process, but I engaged Imran 15 years ago, and now I see the dividend. So Great. maybe that if it had been a part of the process engineering, it would have benefited even earlier. इंशाल्लाह जी, जैसे लास्ट में बात की कि इम्प्रूवमेंट का जो है वो तो हमेशा रहता है. लाइक यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. इट्स नॉट द एंड के आपने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली है तो इट्स ऑप्टिमल. इसी को तो हमने फर्दर इसका एनालिसिस करके कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं. गुड टू ग्रेट में जिम कॉलन यही कहता है कि जब बहुत सारी कंपनीज ग्रेट इस वजह से नहीं बन सकती बिकॉज दे अज्यूम देमसेल्फ कि हम वी आर गुड, तो वो ग्रेट पे नहीं पहुंच पाती. तो गुड टू ग्रेट का यही है कि हमेशा आप यू कीप इन्वॉल्विंग न्यू प्लेयर्स, न्यू कंट्रीब्यूशन, ब्रिंग fresh pair of eyes to analyze your current systems and ask them कि what further we can improve. So that's how a continuous improvement. अच्छा, एक चीज जो आपका बड़ा कंसर्न है जो डिफरेंट कंपनीज का होता है कि अगर हमने ऑटोमेट कर दिया तो मौजूदा लोग क्या करेंगे. ये चैलेंज ग्लोबली है, बट इसको सॉल्व इस तरह से कि आपके लोग ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो सकेंगे. रोबोटिक का काम है ब्रिंगिंग रोबोट आउट ऑफ ह्यूमन, कि उनको मोनोटोनस टास्क से आपने निकाल लेना है और वो क्रिएटिव काम करें और वो कर रहे हैं उनके साथ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टूडेंट इटसेल्फ है, और चाहे वो एचईसी और अदर रेगुलेटरी बॉडी. So there is a bunch of stakeholders. So Ji, I agree with you, Sohail. Imran, over to you. Thank you very much, Sohail bhai. You will be able to focus. So how we have to do that task, of course. So that's capacity building work, mindset transfer work. Thank you very much, Sohail bhai. We believe good is enemy of great. Thank you, Janab. Thank you, everyone, and Anwarul Haq and all the audience for seeing with us, and good comments I can see. Thank you very much, Ji. Thank you. Allah Hafiz.